السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان تقویٰ اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کی گرہ کھول دے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین انداز میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے بنائے انشاءاللہ، آمین۔ اچھا، آج ہم جو ٹاپک کریں گے وہ حروف مدہ اور حروف لین میں جو فرق ہے اس کو دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ کنفیوژنس رہ جاتی ہیں کہ حروف مدہ یعنی یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہے، نہیں معلوم، اور یا واو لین اور واو مدہ میں کیا فرق ہے یہ بھی نہیں معلوم، یعنی دونوں جو ہیں وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں، مد اور لین دونوں مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اگر آپ قاعدہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ ایزی وے میں آپ جب اس کو ڈفرینشیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ اپنے مائنڈ میں اس کے قواعد کو بٹھائیں گے تو کبھی بھی آپ کو جو ہے یہ نہیں بھولیں گے، چونکہ ہمیں قاعدہ یاد ہوگا تو ہم ان کی مقدار کو پورا کر سکیں گے، ان کی ادائیگیاں پوری کر سکیں گے۔ اگر ہمیں قاعدہ یاد نہیں ہوگا تو ہم ان کی نہ تو مقدار ادا کر سکیں گے نہ ہی اس کی ادائیگی پوری کر سکیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم پورا جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہم کھڑی حرکات کر چکے ہیں وہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام کیسے ہوتی ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کھڑی حرکات ہیں وہ حروف مدہ کی طرح ہی پڑھی جاتی ہیں۔ ویسے تو ہم نے اس کو پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ دیکھا تھا، لیکن چلے آج جو ہے وہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں تو جو بھی کنفیوژنس ہیں انشاءاللہ وہ سب کی سب دور بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہم قاعدوں کو دیکھیں گے کہ مد اصلی کا کیا قاعدہ ہے اور حروف لین کا کیا قاعدہ ہے۔ مد اصلی کو چونکہ ہم حروف مدہ بھی کہتے ہیں، ایک چیز یہاں پر دیکھیے کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا اور اصلی کا مطلب ہوتا ہے اصل میں اس کی آواز اصلی اتنی ہی ہوتی ہے، ہم اس کو اس سے کم نہیں کر سکتے، یعنی اصل میں جس کی آواز کو کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے، ہم اس کو اس سے چھوٹا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو حروف مدہ ہیں یہ 2 حرکات پڑھے جاتے ہیں، 2 سیکنڈ تک ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور 2 سیکنڈ یا 2 حرکات جو ہیں یہ 1 الف کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کائنڈلی آپ لوگ مارکر کو یوز مت کیجیے۔ چلیے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ مد اصلی یعنی حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں اور حروف مدہ میں تینوں حرکات یوز ہوتی ہیں۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں اور اس میں تینوں حرکات یوز ہوتی ہیں زبر زیر پیش۔ اب وہ کب کب یوز ہوں گی وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دیکھیے الف مدہ کب بنتا ہے؟ جب خالی الف سے پہلے زبر آ جائے کسی بھی حرف پر، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے الف سے پہلے، ٹھیک ہے، خالی الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو وہ الف مدہ بنتا ہے۔ اس کو ہم نے 2 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر واو ساکن تو واو مدہ کب بنتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے اگر کسی بھی حرف پر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ بنتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے 2 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یا مدہ کا کیا قاعدہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے اگر کسی بھی حرف پر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے 2 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اگر دیکھیں تو واو کی ساؤنڈ پیش کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے، صرف آپ یہ دیکھیے پیش کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے، او، تو او ادا کرتے ہوئے واو کی شکل بن رہی ہے نا ہمارے ہونٹوں کی، تو اس سے پتا چلا کہ واو مدہ یعنی پیش کو اگر ہم کھینچ دیں، پیش ہی کی حرکت کو اگر ہم 2 حرکات تک کھینچ دیں تو وہ واو مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں زبر کی ساؤنڈ کیسی ہوتی ہے، آ، ٹھیک ہے، آ یہ ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اسی زبر کی حرکت کو ہم 1 سیکنڈ اور کھینچ دیں، یعنی ایک حرکت ہوتی ہے زبر کی 1 سیکنڈ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ 1 اور سیکنڈ کا کھینچ دیں، آپ لمبا کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا، آ، یعنی یہ کیا بن گیا، الف مدہ، الف کی آواز آ گئی، یعنی کھینچ کے جب ہم نے زبر کو ادا کر دیا تو وہ الف کی ساؤنڈ پیدا ہو گئی۔ جب پیش کو ہم نے کھینچ کے ادا کیا تھا تو وہ کیا بن گیا تھا، وہ واو مدہ کی واو مدہ کی ساؤنڈ پیدا ہو گئی تھی۔
इसी तरह अगर हम जेर की साउंड को खींच देते हैं, जेर की क्या साउंड होती है, ई, और अगर हम इसको खींच देते हैं ई, तो देखें ई या ऐड हो रही है ना, तो इसका मतलब है या साकिन से पहले अगर जेर आ जाए तो वो या मद्दा होती है। तो हमने जो जबर, जेर और पेश ही की आवाज़ों को खींचते हुए देख लिया कि जो हरूफ मद्दा हैं उनमें इट सेल्फ उनकी जो साउंड होती है ना वो ही उनको खींच के लंबा कर रही होती है। यानी पेश की साउंड को खींच दें, ठीक है, तो पेश की साउंड होती है ऊ, और इसको खींच दे तो ऊ, तो ये वाव की साउंड बन जाती है। ठीक है, तो वाव मद्दा कैसे होता है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होता है, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो या मद्दा होता है, खाली अलिफ से पहले जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है। और इसके लिए आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लाजमी याद रखनी है, खाली अलिफ से पहले अगर अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश या कुछ भी अलामत, जज़म की अलामत आ जाए तो ये अलिफ नहीं होता, ये हमजा होता है। तो अलिफ का खाली होना ज़रूरी है और उससे पहले ज़बर होना ज़रूरी है, तभी वो अलिफ कहलाएगा और वो अलिफ मद्दा होगा। ठीक है, अलिफ हमेशा अलिफ मद्दा ही की शक्ल में अदा होता है। अब आगे देखिए इनकी मिसालें क्या हैं कि खाली अलिफ से पहले ज़बर कैसी होती है, इस तरह से, और वाव साकिन से पहले पेश और फिर या साकिन से पहले जेर। तो ये बा, ता, सा, बू, तू, सू, बी, ती, सी, ये सारी इसी की हरूफ मद्दा की मिसालें हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर मालिकी, यहाँ पर अलिफ मद्दा कहाँ है, मा, खाली अलिफ से पहले ज़बर, तो ये है अलिफ मद्दा, इसको दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव मद्दा कहाँ है, अऊज़ु, यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश, तो रू के ऊपर दो हरकत खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे या मद्दा कहाँ है, अर्रहीमी, ही, ये या साकिन से पहले जेर, यहाँ पर या मद्दा है ही, इसको हम दो हरकत खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था मद असली यानी हरूफ लीन। अब चलते हैं सॉरी मद असली यानी हरूफ मद्दा। अब चलते हैं हरूफ लीन की तरफ। हरूफ लीन क्या होते हैं, लीन के माने होते हैं कि नरमी के साथ मोड़ पैदा करना, नरमी के साथ मोड़ पैदा करना। ठीक है, और मोड़ कब पैदा करेंगे, जब पिछले हर्फ पर जबर होगी। ठीक है, पिछले हर्फ पर जबर होगी। अब हम कहते हैं कि हरूफ लीन है ही दो, वाओ लीन है और या लीन है। ठीक है, तो इसका कायदा क्या होगा, जब मैंने कहा कि हरूफ लीन को मोड़ के अदा करते हैं और वो मोड़ना कहाँ से है, जबर को मोड़ के हर्फ की तरफ जाना है। अब अगर वो मोड़ने के लिए हमारे हर्फ के पीछे जबर मौजूद है तो इसका मतलब है कि हरूफ लीन में सिर्फ और सिर्फ जबर यूज होती है। तो वाओ साकिन से पहले अगर जबर आ जाए तो वाओ लीन कह देंगे, और या साकिन से पहले अगर जबर आ जाए तो या लीन कह देंगे। यानी सिर्फ दो ही हरूफ लीन हैं, और लीन के लिए कायदा सिर्फ इतना है कि जबर यूज होती है, बस दैट्स इट, और कोई हरकत यूज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमने मोड़ के लाना होता है ना, तो देखिए अगर हम मोड़ेंगे बाकी जबर को वाव की तरफ मोड़ के लाएंगे ना, बऊ, ऐसे, इसी तरह या की या की तरफ मोड़ के लाएंगे, वो क्या करेंगे, बा की जबर को या किसी की भी जबर को, किसी भी हर्फ की जबर को या साकिन की तरफ अगर मोड़ के लाएंगे तो क्या करेंगे, बई। ठीक है, अगर इसके नीचे जो है वो कसरा होती, बा के नीचे जेर होती और आगे या साकिन होता, तो फिर तो मुड़ ही नहीं रहा, फिर तो हर्फ ही नहीं मोड़ना पड़ रहा, फिर क्या हो रहा है, बा की जेर अदा की बी और साथ में या साकिन अदा की बी, ये तो मद बन गई, यानी हर्फ लंबा हो गया, हरकत खींच दी हमने, तो ये तो मद बन गई, यानी हरूफ मद्दा बन गई। तो मोड़ कहाँ पैदा होगा, जब इस हर्फ के पीछे जबर होगी तभी मोड़ पैदा होगा, बऊ और बई, तभी मोड़ पैदा होगा। ठीक है, तो हरूफ लीन क्या होता है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद हो जाए कि नरमी से मोड़ पैदा करना, ठीक है, तो मोड़ कैसे पैदा होगा वाओलीन और यालीन में, जब इनसे पीछे जबर होगी। ठीक है, जबर को अदा करते हुए ही वाओ की तरफ मुड़ना है और जबर को अदा करते हुए ही या की तरफ मुड़ना है। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा कायदा है कि हरूफ लीन में बस सिर्फ और सिर्फ जबर यूज होती है। अब आगे हम देख लेते हैं, इंशाल्लाह मजीद इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मिसालें हैं, बऊ, तऊ, सऊ, बई, तई, सई, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, बऊ, तऊ, ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वो नहीं है, हरूफ मद्दा नहीं है कि हम इसको खींच के दो हरकत तक लंबा कर दे, बस बऊ, बस इसमें बस नरमी से मोड़ पैदा करना होता है, तो इनको ज्यादा लंबा खींच के नहीं पढ़ना है। अब देखिए ये वही कायदा है, नरमी से मोड़ अदा करते हैं।
देखिए आगे मिसालें देखिए, वाव साकिन से पहले जबर है तो ये है वावलीन। यऊमा, यऊ मोड़ पैदा किया, या की जबर थी, या जबर या, अब उसमें मोड़ पैदा करते हुए वाव की तरफ लेकर आए हैं, यऊ, ठीक है। यऊमा, इसी तरह खौफा, ठीक। अलैहिम, अब यहाँ पर मोड़ कैसे पैदा होगा, या साकिन से पहले जबर है तो लई, लई, अलैहिम नहीं है, ये बहुत सारे लोग अलै पढ़ते हैं, अलैहिम नहीं है, लई, मोड़ कैसे पैदा करेंगे, लाम की जबर को अदा करते हुए या की तरफ मुड़ेंगे, अलई, लई, ये अलैहिम, अलैहिम लै गलत हो जाएगा, ठीक है, अलैहिम, फिर गैरी, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन में अब फर्क करेंगे हम कॉलम खींचकर, ठीक है। देखिए हरूफ मद्दा कितने हैं, हरूफ मद्दा 3 है, ठीक है, जबकि हरूफ लीन होते ही 2 हैं, ठीक। हरूफ मद्दा 3 होते हैं और हरूफ लीन 2 होते हैं। हरूफ मद्दा में कौन से हरूफ शामिल हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, लेकिन हरूफ लीन कौन कौन से हैं, सिर्फ वाव लीन और या लीन, यानी 2 ही हरूफ जो है वो हरूफ लीन है। आगे देखिए हरूफ मद्दा में तीनों हरकत इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, यानी खाली अलिफ से पहले जबर होगी, वाव साकिन से पहले पेश होगी और या साकिन से पहले जेर होगी, तो ये हरूफ मद्दा बनेंगे। जबकि लीन में सिर्फ और सिर्फ जबर ही अदा होती है, वाव साकिन से पहले जबर होगी या फिर या साकिन से पहले जबर होगी, यानी हमने देखा कि लीन में तो सिर्फ और सिर्फ जबर ही अदा होती है, जबकि हरूफ मद्दा में जबर जेर पेश सारा कुछ ही अदा हो रहा है। तो इससे भी हमें पता चला कि लीन में जस्ट जबर अदा होती है, जबर ही इस्तेमाल होती है। तो हम कहेंगे कि जब भी वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो वाव लीन है, या साकिन से पहले जबर आ जाए तो या लीन है, लेकिन अगर वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा है, और अगर या साकिन से पहले जेर आ जाए तो वो या मद्दा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना सा ही इसका डिफरेंस था हरूफ मद्दा का और हरूफ लीन का, ठीक है। बस यही डिफरेंस है कि आपने हरूफ लीन के लिए देख लेना है कि सिर्फ और सिर्फ जबर यूज होती है, वाव साकिन या साकिन से पहले जबर आ गई, दैट्स इट, हमने मोड़ पैदा करते हुए लीन अदा करना है। फिर अगर जो हरूफ मद्दा है उसमें तीनों हरकत यूज होती हैं, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले जेर आए तो ये वाव मद्दा और या मद्दा होंगे। खाली अलिफ से पहले जबर तो इसकी तो किसी के साथ रिजेम्बलेंस ही नहीं है, इसकी तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, ठीक है, कि खाली अलिफ से पहले जबर है तो वो तो है ही अलिफ मद्दा। चलिए अब आगे चलते हैं खड़ी हरकत की तरफ। अभी हम देखेंगे कि खड़ी हरकत किस तरह से जो है वो हरूफ मद्दा के कायम मकाम होती हैं या फिर हरूफ मद्दा की तरह ही पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है खड़ी हरकत कायम मकाम हरूफ मद्दा। कायम मकाम का मतलब होता है कि जो मकाम हरूफ मद्दा का है ना, यानी जो जो जिस तरह से हम हरूफ मद्दा को पढ़ेंगे उसी तरह से हम खड़ी हरकत को पढ़ेंगे, वही मकाम खड़ी हरकत का भी होता है पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए खड़ी जबर अलिफ मद्दा कायम मकाम होती है, जबकि खड़ी जेर या मद्दा कायम मकाम होती है, और उल्टा पेश वाव मद्दा कायम मकाम होता है। अब वो कैसे होते हैं, यहाँ पे देखिए रेड कलर के जो साइन बने हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आप अलिफ मद्दा को अदा कर रहे हैं मालिकी, ठीक है, तो फिर आप दूसरे वाले में देखिए कि जब आप खड़ी जबर के साथ इसको अदा करते हैं तो हमने कहा था खड़ी जबर को भी 2 काउंट्स पढ़ते हैं, अलिफ मद्दा को भी 2 काउंट्स पढ़ेंगे, खड़ी जबर को भी 2 काउंट्स पढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, वो भी क्या बनेगा, मीम खड़ी जबर मा, दो हरकत पढ़ा ना, तो मालिकी वो भी सेम वही अदायगी है और ये भी सेम वही अदायगी है, मालिकी मालिकी। तो इसका मतलब है खड़ी हरकत, ये जो खड़ी जबर है ये अलिफ मद्दा कायम मकाम है। आगे चलते हैं खड़ी जेर को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए खड़ी जेर या मद्दा कायम मकाम है ना, तो यहाँ पर देखिए या मद्दा, या साकिन से पहले हमजा के नीचे जेर है, ई, हम 2 हरकत इसको लंबा करेंगे, ठीक है, ई लाफीहिम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमजा के नीचे खड़ी जेर है, ठीक, तो इसको भी हम खड़ी जेर को भी 2 हरकत ही पढ़ते हैं ना लंबा करके, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, ई, ठीक है, ई लाफीहिम। तो पढ़ने में दोनों की सेम अदायगियां हैं, ई लाफीहिम, ई लाफीहिम, दोनों सेम है।
आगे देखिए कि हमने कहा उल्टा पेश जो है वो वाव मद्दा कायम मकाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन से पहले पेश है, ठीक है। तो ये वाव मद्दा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी आवाज को, वाव मद्दा की आवाज को 2 हरकत खींच के लंबा करेंगे। गौना, वू वू, 2 हरकत लंबा, ठीक है। तो उल्टा पेश को भी हमने कहा था कि इसकी भी तो हरकत 2 ही है ना, 2 हरकत ही इस उल्टा पेश को भी पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर वाव के ऊपर हुआ उल्टा पेश, तो इसको भी 2 हरकत ही खींच के लंबा करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, गौना। अब पढ़ने में दोनों की अदायगियां सेम हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, गौना गौना, दोनों दोनों सेम। तो इसलिए हम कहते हैं कि खड़ी हरकत जो है वो किसके कायम मकाम है, हरूफ मद्दा कायम मकाम है। और कौन कौन सी खड़ी हरकत किस हरफ मद्दा कायम मकाम है, खड़ा जबर बिल्कुल जो है वो अलिफ मद्दा की तरह पढ़ा जाता है, खड़ी जेर बिल्कुल सेम टू सेम या मद्दा की तरह पढ़ी जाती है, और उल्टा पेश सेम टू सेम वो मद्दा कायम मकाम पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि खड़ी जबर की भी 2 हरकत होती हैं, अलिफ मद्दा की भी, खड़ी जेर की भी और या मद्दा की भी, उल्टे पेश की भी और वाव मद्दा की भी, सबकी 2 हरकत ही होती हैं। और जब हम इनकी आवाज़ों को देखने लगे तो आवाज़ें इनकी सेम टू सेम ऐसे ही बन रही हैं, हरूफ मद्दा कायम मकाम हो रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि खड़ी हरकत जो है वो हरूफ मद्दा ही के कायम मकाम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है कि इन सबको 2 हरकत यानी 2 काउंट्स खींच कर लंबा करके पढ़ते हैं। बस ये था हमारा आज का ब्रीफली सा टॉपिक, जिसमें कि तमाम चीज़ों को समराइज कर दिया और तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर दिया है कि अगर अभी भी किसी की कोई कन्फ्यूजन रहती थी तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।